Hi guys, so delighted to have you all here with us at Dr. Amina classes, and today we'll take another class of chemistry for your class 10th series. And in the last class we have done till decomposition reactions, right? We did in depth about electrolysis activity, NCRT, everything we discussed in the last class, and that was the last thing that we took. Right. So I hope you are studying side by side, but I don't think so because any doubts or queries are not coming in the way. So that means either you are too intelligent and you're able to grasp everything, or you are not studying. I think the latter is more appropriate. Anyways, just at least try to listen to the lecture attentively so that बाद में when you study it, when exams are there or some class test या आपका कभी mood बने तो at least कुछ चीज़ें you can still remember in the back of your mind. At least concepts are clear. रटने वाले you can do okay, but at least concepts must be clear. So these classes are concept building classes. Make the most of them. I'm telling you seriously. ये ना तो आपके स्कूल में फिर से कुछ होने वाला है. Most schools have already done with this chapter, but we are teaching extensively, also slowly, so that the momentum builds up. And even in this coaching we have done with the online classes. So even if you join offline session, this chapter is not going to be repeated. So these classes are actually important and really precious for you guys. You will understand its worth maybe a little time later, but don't take them for granted. Don't take them. Okay? So let us continue with this class today. I hope everyone is now all settled and ready. Okay. So I have a question for you. हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस की लास्ट क्लास में एक्टिविटी देखी थी तो आई टोल्ड यू कि आपने मग को ऑलमोस्ट हाफ फिल करा था वाटर के साथ एंड देन देयर वाज अनदर पॉइंट दैट यू शुड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एनी एसिड फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट H2SO4. अगर वो नहीं है तो आप डाइल्यूट HCl डाल सकते हो. अगर वो नहीं है तो आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल सकते हो. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? हम इलेक्ट्रोलिसिस की एक्टिविटी पढ़ रहे थे, वाटर लिया था, उसी का इलेक्ट्रोलिसिस करना था, दैट इज हाइड्रोलिसिस. उसमें हमने एक डाइल्यूट एसिड क्यों ऐड करा? Well, the answer is right in front of you. Yes, H2SO4, it is a electrolyte. H2SO4, it is a electrolyte. Electrolyte मतलब anything which breaks into रिस्पेक्टिव आयंस. इलेक्ट्रोलाइट मतलब किसी भी चीज़ का चार्ज होना, किसी भी चीज़ के अंदर आयंस का होना. तो H2SO4 will dissociate into its respective ions. H2SO4 किस चीज़ का बना है? H positive, that is hydrogen ion, and SO4 minus 2 which is सल्फेट आयन. तो आप H2SO4 को डालोगे पानी में, उसका एक डाइल्यूट सोल्यूशन आपने लिया है, तो इट विल डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस H पॉजिटिव एंड सल्फेट माइनस 2. तो वाटर के अंदर वैसे भी आयंस थे, दैट इज H पॉजिटिव आयन था और O माइनस 2 ऑक्साइड आयन था. वाटर भी तो आयंस का बना है, H पॉजिटिव एंड O माइनस 2 ऑक्साइड आयन. H पॉजिटिव आयन और ऑक्साइड आयन. पर अगर सिर्फ इतने लिमिटेड आयंस हैं तो प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा. अब हमने थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया, इट्स जस्ट लाइक द तड़का दैट यू ऐड टू द फूड. सो ये फटाफट बहुत सारे आयंस एक्स्ट्रा दे देगा, H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस. तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी. So that is the significance. Okay, so you can write in the exam that H2SO4, it is a polar compound, or a better word, it is an electrolyte. So when we add it into water, it dissociates into its respective ions, that means H positive ion and sulfate ion, and so more the number of ions, the faster the reaction will occur. And which reaction we are discussing? Hydrolysis. Okay, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक सिंपल सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए. नाउ दिस इज योर कॉन्सेप्ट, ये आगे भी यूज होने वाला है. सो आई वांट यू टू टेक दिस इन योर माइंड.
इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं सॉलिड मीडियम में वर्सेस लिक्विड या मोल्टन में, अगर मैं सॉलिड मीडियम की बात करूं तो सॉलिड मीडियम एग्जाम्पल आपका क्या होगा, कॉपर वायर। हमारे घर में जो बिजली है, इस रूम में लाइट्स जो अभी खुली हुई हैं, तो सॉलिड फेस मतलब कॉपर आयन। उसके अंदर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली क्यों होती है, it is because of flow of electrons, it is because of the flow of electrons। तो किसी भी सॉलिड स्टेट में there are two things, number one flow and number two electrons। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अगर सिर्फ स्टैटिक चार्ज है तो it is not going to create electricity और इलेक्ट्रिक करंट। तो नंबर वन तो फ्लो होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। किसका मूवमेंट होना चाहिए, अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं, कॉपर वायर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is responsible for बिजली और इलेक्ट्रिसिटी in your solid material, example कॉपर वायर जो आपके घर में पूरी बिजली जो है, ठीक है। अब अगर हम केमिस्ट्री में फर्दर बात करें, लिक्विड या मोल्टन स्टेट, दोनों के लिए सेम होगा, लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट में यहाँ पर योर इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ कोर्स फ्लो ऑफ आयंस एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें वाटर में, किसी भी लिक्विड में, किसी पोलर कंपाउंड में, अगर वो लिक्विड स्टेट में है या इवन कोई सॉलिड है जिसको हाई टेम्परेचर पे हमने मेल्ट करा है, दैट मीन्स मोल्टन स्टेट में है, तो इन दोनों के लिए ही लिक्विड एंड मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयंस। तो हमने इस एक्टिविटी में जो H2SO4 ऐड करा था उसने मोर आयंस दिए थे, मोर इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, तो रिएक्शन फटाफट कंप्लीट हो पाएगा। Okay, so speed of the reaction will increase। Okay, so speed of the reaction will increase and water which is already a polar compound, I told you it is already made of H positive and oxide ions, पर वो एक better conductor of electricity बन जाएगा, better conductor of electricity and speed of reaction will be enhanced। Okay, so I hope it's all clear till now। Now we are going to proceed to the third type of reaction। We have successfully completed very nicely combination reaction। Number 2 बात करी थी बहुत डिटेल में about decomposition reaction, and today we are going to start with the third type, your displacement reaction। तो I want you guys to recall that what was displacement reaction, और उसके नाम से भी खुद बहुत क्लियर हो रहा है, displacement reaction, right? Okay, so a more reactive metal displaces a lesser reactive metal। कहाँ से? If you just say more reactive is displacing a lesser reactive, very incomplete। A more reactive metal displaces a lesser reactive metal from its aqueous salt solution, from its aqueous salt solution। तो ये definition लिखी है, a more reactive metal displaces a lesser reactive metal, कहाँ से? From its aqueous salt solution। सॉल्ट सोल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए, सॉल्ट के फॉर्म में होना चाहिए, और एक्वस मतलब वाटर में डिजॉल्व्ड है, सॉल्ट सोल्यूशन, एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन। अभी हम इसकी जैसी एक्टिविटी देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर होगा फर्दर। ओके, सो ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। पहले हम यहाँ से स्टेप्स पढ़ते हैं, फिर वहाँ पर हम एक बार डायग्राम और फर्दर देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बार यू हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक टेस्ट ट्यूब ए होगा, एक टेस्ट ट्यूब बी होगा। दोनों में आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड 10 ml ऑफ CuSO4। क्या होता है CuSO4? कॉपर सल्फेट। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट या ट्रिक बताऊं, मोस्ट ऑफ द कॉपर कंपाउंड्स, चाहे कॉपर सल्फेट हो, कॉपर का क्लोराइड हो, ज़्यादातर कॉपर के कंपाउंड्स आर ब्लू इन कलर। मोस्ट कॉपर कंपाउंड्स आर ब्लू इन कलर। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट ट्रिक। आपको एग्जाम में कभी कॉपर कंपाउंड CuSO4, कॉपर क्लोराइड एक्सेट्रा आपको याद नहीं आ रहा है, सो जस्ट रिमेंबर मोस्ट कॉपर कंपाउंड्स आर ब्लूइश इन कलर। सो अब ब्लू कलर से यू कैन बी इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ सेवर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के कलर्स आपको याद करना है इन द होल 10th केमिस्ट्री, तो एक ट्रिक है हमारे बहुत हैंडी रहेगी। ठीक है, सो हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ए और बी लिए, दोनों के अंदर 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट या CuSO4 डाला, दैट वाज अ ब्लू कलर सोल्यूशन। अब क्या करना है, जो ए वाला टेस्ट ट्यूब है
उसमें आपको अब मेन ए वाले टेस्ट ट्यूब से अब आपको मेन मतलब है, बी वाले को आपने साइड में रख दिया, इसको हम बाद में कुछ कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी आपने अब अपना ए वाला टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें क्या करा, आयरन नेल्स मतलब लोहे की कील, ओके, आयरन नेल्स को आपने उसमें इमर्स कर दिया। कितनी देर के लिए, अराउंड 20 मिनट्स। नेक्स्ट स्टेप, नाउ टेक द आयरन नेल आउट एंड कंपेयर इट विद अ फ्रेश नेल। आपके पास साइड में और आयरन की कील रखी थी, आपने उस एक फ्रेश कील को लिया अपने बॉक्स में से, और ये कील जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप थी फॉर 20 मिनट्स, और इन दोनों आप आयरन की नेल्स को या आयरन की कील को आपको अब कंपेयर करना है। फ्रेश आयरन की जो नेल है वो किस कलर की होगी, ग्रेश कलर की। आयरन कैसा होता है, ग्रेश कलर का। और ये वाली जो होगी, अभी मैं नहीं बताऊंगी, हम एक्टिविटी के बाद ही देखेंगे, ठीक है, इसका कलर कुछ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप हो गया। नाउ योर फोर्थ स्टेप, आयरन नेल चेंजेस टू, ओके, सो उसने रिवील कर दिया, आयरन नेल चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर ड्यू टू, रीजन भी बता दिया, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कॉपर। यहाँ पर एक बहुत फन चीज़ होती है हर साल क्लास में जब हम इस एक्टिविटी पे आते हैं, एंड आई टेल मतलब आई आस्क द स्टूडेंट्स कि आपको क्या लग रहा है, जो आयरन की कील है वो रेडिश ब्राउन कलर की क्यों हो गई। तो बहुत सारे बच्चे एकदम से बोल देते हैं कि मैम उस पर रस्ट लग गया होगा। दैट इज सच अ इलॉजिकल आंसर। रस्ट लगने के लिए, कैन यू इवन इमेजिन, क्या बोल रहे हैं आप, रस्ट ओनली हैपेंस व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन, दैट मीन्स एयर, as well as H2O, that is moisture, for a pretty long period of time। ऐसा नहीं होता मैंने आज ये आयरन का कोई आर्टिकल रखा और 20 मिनट में इस पर पूरा जंग लग गया। It's a slow process, it takes certain amount of time and it requires the presence of oxygen and water। यहाँ पर हमने आयरन की कील को CuSO4 के अंदर डिप करा है, ऑब्वियसली कुछ और फिनोमिना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो आयरन की जो नेल है वो रेड कलर की इसलिए हो गई क्योंकि उसके ऊपर एक पतला सा कॉपर का लेयर डिपॉजिट हो गया, और कॉपर मेटल होता है रेडिश ब्राउन कलर का। तो आयरन पे जंग नहीं लगा, आयरन के ऊपर जो कॉपर मेटल है जो डिस्प्लेस हो गया वो आयरन की कील के ऊपर भी थोड़ा सा जम गया। टेस्ट ट्यूब के नीचे बॉटम में भी थोड़ा सा रेड डिपॉजिट मिलेगा, और बाकी कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे एक लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आयरन नेल को जब आप बाहर निकालोगे 20 मिनट के बाद तो वो रेडिश ब्राउन कलर की मिलेगी, ठीक है, रस्ट नहीं है। नेक्स्ट, ओके, अब हम टेस्ट ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, अब इसको भी कंपेयर कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब ए जिसमें ये सारी एक्टिविटी हुई थी, और टेस्ट ट्यूब बी जिसको साइड में रख दिया था कंपेयर करने के लिए। तो आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में, जिसमें शुरू में यू टू कॉपर सल्फेट विच वॉज नो डाउट, विदाउट अ डाउट इट वॉज ब्लू इन कलर, और टेस्ट ट्यूब बी में भी ब्लू कलर का ही था कॉपर सल्फेट, उसको तो आपने साइड में ऐसे ही रख दिया। तो बी वाले तो अभी भी कॉपर सल्फेट है प्रॉपर ब्लू कलर का। पर अब आप टेस्ट ट्यूब ए को देखोगे आफ्टर दिस 20 मिनट्स, तो टेस्ट ट्यूब ए का पूरा कलर भी बदल चुका है, अब वो लाइट ग्रीन इन कलर है। तो टेस्ट ट्यूब ए का कलर बदल गया, वो लाइट ग्रीन था, बी मतलब जिसमें कॉपर सल्फेट है वो तो ब्लू है, पर ए जिसमें कॉपर सल्फेट था रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो ब्लू कलर का अब लाइट ग्रीन कलर में बदल चुका है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। और नंबर 2 जो हमने अभी जस्ट देखा कि जो आयरन की नेल आप निकालोगे इस टेस्ट ट्यूब ए में से, वो कील भी आपको रेडिश ब्राउन कलर की मिलेगी बिकॉज ऑफ द कॉपर डिपॉजिट। तो ऐसा क्या चीज़ हो रही है, अब हम उसको रिएक्शन से समझते हैं। वेरी सिंपल, रिएक्शन कितना सिंपल है, Fe दैट मीन्स आयरन, आयरन की जो नेल थी वो आयरन मेटल हो गया, आयरन प्लस पूरा सोल्यूशन जो था टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, ये दो चीज़ें ही रिएक्ट कर रहे थे, आयरन की कील थी और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। तो Fe प्लस CuSO4, और हमें पता है कि Fe मतलब आयरन या लोहा कैसा होता है, ग्रे कलर का, और CuSO4 और ज़्यादातर कॉपर सॉल्ट्स ब्लू कलर के। लेकिन ओवर द टाइम जब रिएक्शन होगा तो आयरन विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। CuSO4 एक सॉल्ट है, अकेला कॉपर बैठा हुआ नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ एक सॉल्ट सोल्यूशन के फॉर्म में है, ब्लू कलर का सोल्यूशन। आयरन कॉपर को इस सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है।
तो अब ये जो FeSO4 बना है, दिस FeSO4 इज योर लाइट ग्रीन इन कलर। ओके, जो सोल्यूशन चेंज हो गया, और जो कॉपर का डिपॉजिट था, कौन से कलर का था कॉपर का डिपॉजिट? कम ऑन गाइस, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर का डिपॉजिट है जो आपके आयरन की नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट्स अ रियली फन एक्टिविटी, एंड इसका रिएक्शन कितना सिंपल है ना, बैलेंसिंग करना। Fe plus CuSO4 will give FeSO4 plus Cu. Iron is more reactive, it will displace copper. जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बॉटम में भी थोड़ा सा चला जाएगा और बाकी नीचे सेटल करेगा, तो आपकी कील भी नीचे है, तो कील के ऊपर भी कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार आपकी जो NCERT में दिया है वहाँ से भी एक बार रीड कर लेते हैं। एक्टिविटी, ओके, या सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्टिविटी कौन सी है? 1.9. So let me zoom it for you. Okay. So as we can see, यहाँ पर अब देखो ये जो एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं ये थोड़ा ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड सेटअप ले लेते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा स्टैंड लो, उसमें टेस्ट ट्यूब को ऐसे फिक्स करो। आप नॉर्मल टेस्ट ट्यूब का जो सिंपल स्टैंड होता है उसमें टेस्ट ट्यूब को रख सकते हो। समझ में आ रहा है? और ज़रूरी नहीं है कि आप 2 नेल्स लो, एक आयरन नेल से भी काम चल जाएगा। एंड यू डोंट हैव टू यूज़ थ्रेड एंड पुट इट इन दैट। आप ऐसी सिंपल कील को उसके अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब इतनी आपको एक्स्ट्रा सोफेस्टिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्टिविटी है। सो टेक 3 आयरन, सिंपल 2 आयरन नेल्स, एक फ्रेश आप रखोगे कंपेयर करने के लिए और एक को उसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, टेक 2 आयरन नेल्स और क्लीन देम विद द सैंड पेपर। ये हमने मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी में भी पढ़ा था। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा था, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम बेसिक, मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अलग अलग लेयर्स सॉल्ट्स की जम जाती हैं, उन सबको हटाते हैं। और हमें क्योंकि रिएक्शन करना है प्योर मैग्नीशियम के साथ, तो ऊपर जो लेयर है बन चुकी है रिएक्शन की वजह से, उसको हटा दोगे। वैसे आयरन की जो कील है हमें आयरन के साथ रिएक्शन करना है, तो हो सकता है कील पे थोड़ा सा आयरन का ऑक्साइड बना हो, तो आप उसको फर्दर घिस लोगे विद द सैंड पेपर। ठीक है, तो आपने क्या करा, आयरन की 2 नेल्स ले लिए, सिंपल 2 नेल्स ले लिए और उसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया सैंड पेपर से। सो आयरन नेल्स की बात हो गई। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, टेस्ट ट्यूब 2 लेना है, A और B। मेन A में सब कुछ होगा, B को रखा है कलर कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और दोनों में क्या ले लोगे, 10 ml ऑफ CuSO4। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट हमको ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। अभी आयरन नेल को सिंपली आप उसमें डाल दोगे, टेस्ट ट्यूब में इमर्स कर देंगे फॉर 20 मिनट्स और एक कील को अलग रख देंगे बाद में कंपेयर करने के लिए। फिर आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ CuSO4। ठीक है, नाउ कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट वर्सेज द आयरन नेल विच वॉज केप्ट फ्रेश। ओके, अनदर डायग्राम टू फर्दर क्लैरिफाई एवरीथिंग। ये आपका आयरन नेल है, फ्रेश वाला, इसको ऐसी साइड में रख दिया था। ये है जो आपने सोल्यूशन के अंदर से निकाला था, जो कॉपर सल्फ्यूट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो डिप्ड था। तो इस पे आप देख सकते हो कि रेडिश ब्राउन कलर है, ये रस्ट नहीं है, ये कॉपर का उसके ऊपर लेयर है जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का। और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब A की बात हो रही है, टेस्ट ट्यूब A में CuSO4 था प्रॉपर ब्लू कलर का, बाद में जब चेंज हुआ FeSO4 बन गया लाइट ग्रीन इन कलर, लाइट ग्रीन इन कलर। ठीक है, ओके, राइट, नाउ लेट अस कम बैक टू वेयर वी वर। ओके, right. Now this is another question, you can say that give some other examples of displacement reaction. तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, सिंपल एक और है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये जो जिंक सल्फेट है वाइट कलर का होता है और अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो कलरलेस हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल वेरी सिंपल, लेड, लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, कौन सा कॉपर, कॉपर 2 क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम आप लोग बताएं,
क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, ये भी ब्लू कलर का होता है, कॉपर क्लोराइड। तो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड विल गिव लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ये अगेन वाइट कलर का है, सिंपल। ये भी वाइट कलर का था, ये भी वाइट कलर का था। कॉपर का सल्फेट हो वो भी ब्लू होता है, कॉपर का क्लोराइड हो वो भी ब्लू होता है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, पर अब एक चीज़ ये है कि आपको वो पता होना चाहिए, यस, रिएक्टिविटी सीरीज। आप एग्जाम में कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल अपना खुद का बना सकते हो, रचना नहीं एग्जाम्पल्स। अगर आपको पता है कौन सा मेटल किस सीरीज में अरेंज्ड है, सबसे रिएक्टिव कौन है, फिर उससे लेस रिएक्टिव, फिर लेस रिएक्टिव एंड फाइनली लीस्ट रिएक्टिव। तो ये आप लोगों ने आई थिंक यस अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है। रिएक्टिविटी सीरीज ये हमको अरेंज करके बता देता है कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वर्सेस कौन सा कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव वाला फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन। तो इसको याद रखने के लिए आई हैव सिंपल ट्रिक्स ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विथ पोटेशियम। ये आपकी कई बार रिफ्रेशर्स में बहुत लंबी लिस्ट दी होती है, ये एनसीईआरटी में भी दी है। ये वाली लिस्ट 10th की चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स। तो मैं अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रही हूँ। सो आपको ये वाली एक्टिविटी सीरीज रटी होना चाहिए। इसके बाद इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा यू कैन पर्सनली आस्क। फिर बहुत सारे मेटल्स हैं फालतू के, टिन और ये वो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो मेन मेटल्स हैं 10-12 वो एनसीईआरटी ने कवर करें। लिथियम, बेरिलियम, टिन, हम उसको क्यों जानें जब उसका 10th में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो जो मेटल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनमें रिएक्शंस मिलते हैं थ्रू आउट 10th, वो सारे इस एक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल्स कवर हो रहे हैं। ये एक्टिविटी सीरीज टिप्स पे होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ है मेटल्स बीच में वो बाद में। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नेक्स्ट एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन विच इज़ अ नॉन मेटल, वो बीच में आ जाता है जस्ट टू काइंड ऑफ डिनोट कि हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिव वाले होते हैं हाई रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे जो होते हैं हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हैं, मतलब दे आर कॉल्ड लो रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। ठीक है, हाइड्रोजन काइंड ऑफ बीच में एक डिमार्केशन क्रिएट करता है, इट इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आता है Cu, दैट इज कॉपर, फिर M, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी विच इज एक्चुअली Hg, मर्क्यूरी। ठीक है, C से कॉपर, M से मर्क्यूरी, फिर Ag दैट इज सिल्वर, Au दैट इज गोल्ड एंड Pt दैट इज प्लैटिनम। ठीक है, सो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन बीच में हाइड्रोजन, उसके नीचे Cm कॉपर, नॉट मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, Cm कॉपर, मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब मैं फर्दर और ट्रिक्स पे आ रही हूँ। जो मैंने आपको एक दिन ट्रिक बताई थी फर्स्ट सेकंड क्लास में ही, क्लबिंग टेक्निक। क्लबिंग टेक्निक मतलब आपको ऐसे 12 चीज़ें रटनी हैं। यू आर नॉट लाइक, अगर आप बहुत ही नाइव हो, छोटे बच्चे हो, तो आप ऐसे रटोगे पोटेशियम, सोडियम, कम ऑन। You have to break the long list of 12 items into small groups और clubs। 2 का एक क्लब, 4 का एक क्लब, 5 का एक क्लब, ऐसे 3-4 क्लब में आपके पूरे आपको रट जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लब में आप 2 मेटल्स को साथ क्लब कर लीजिए, पोटेशियम और सोडियम। ये दोनों हम बहुत पढ़ते हैं हमेशा, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम, हमेशा दोनों साथ आते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह पे चढ़ा रहता है ज़्यादातर सोडियम पोटेशियम, पर रिएक्टिविटी में पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फर्स्ट से पोटेशियम देन सोडियम, ये दोनों दोस्त हो गए, एक क्लब डन, फिनिश। नेक्स्ट कैल्शियम मैग्नीशियम का दूसरा पेयर है या क्लब है। अब आपको पता है कैल्शियम मतलब जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है दूध का ग्लास, और मैग्नीशियम Mg लाइक मैगी। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो कौन से फूड को प्रेफरेंस देना चाहिए, अ ग्लास ऑफ मिल्क दैट इज कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम दैट इज मैगी। ऑलवेज कैल्शियम इज अबव योर मैगी। सो ये दूसरा क्लब हो गया कैल्शियम फॉलोड बाय मैग्नीशियम। तो पोटेशियम, सोडियम, फिर आ गया कैल्शियम, फिर मैगी दैट इज मैग्नीशियम, डन। अब मैगी से ही स्टार्ट हो रहा है, M से आप 4 का अब एक स्लॉट है, MAZI माजी, एक सिंपल सा ट्रिक, MAZI माजी। M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, फिर Z से जिंक और I से आयरन। ओके, आयरन होता है ऑब्वियसली Fe, पर यहाँ ट्रिक है माजी। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, फिर मैंने कहा था बीच में एक लेड आता है, लेड बीच में एक है फिलर, लेड, Pb होता है सिंबल लेड।
देन एक नॉन मेटल आता है जस्ट टू क्रिएट अ डिमार्केशन, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर वाले मतलब काफ़ी रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव, हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स मतलब लो रिएक्टिव, तो बीच में हाइड्रोजन आ गया, उसके नीचे 5 हैं। तो सी एम लाइक बहुत बड़ा VIP बिग पीपल, CM, तो C मतलब कॉपर, दैट इज Cu, M मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जिसका सिंबल है Hg, तो CM कॉपर मर्क्यूरी, एंड VIP और बिग पीपल विल हैव सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, सो CM सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। हाइड्रोजन के नीचे क्या आना है, CM that is copper, M that is mercury, and silver, then gold, and lastly the most unreactive, that is your platinum. ठीक है, so a quick revision again, you start with potassium, then sodium, then आता है मिल्क का, that is दूध का ग्लास, that is कैल्शियम, फिर आएगा मैगी मैग्नीशियम, यही मैगी से स्टार्ट कर दो, माजी दैट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर बीच में एक लेड आ जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे यू हैव CM कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। बस, तो आप बता सकते हो, अभी हमने देखा जिंक प्लस कॉपर था, तो अभी हमने जो देखा था रिएक्शन उसमें क्या लिखा था मैंने, जिंक प्लस CuSO4, इधर ही है राइट, या दिस वन, सी जिंक प्लस CuSO4, जिंक प्लस CuSO4, देखो आप जिंक है और यहाँ पर कौन सा मेटल है दूसरा, CuSO4, तो आपने अभी जस्ट देखा माजी, माजी मतलब जिंक था, माजी, फिर लेड था, फिर हाइड्रोजन था, और C कॉपर नीचे था, हाइड्रोजन के भी नीचे, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यस होगा। अगर यहाँ होता कॉपर से लेस रिएक्टिव, एग्जाम्पल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिखा होता है Hg, मर्क्यूरी प्लस कॉपर सल्फेट, तो आप लिखते नो रिएक्शन, मर्क्यूरी इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, हाउ कैन इट डिस्प्लेस कॉपर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखो आप लोग, लेड, लेड का दिया है राइट, लेड और दूसरा फिर से वो ये कॉपर, तो लेड में भी आपने देखा लेड था, फिर हाइड्रोजन था, फिर कॉपर था, सो लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है। इस तरह से आप एग्जाम में कोई भी सॉल्व कर सकते हो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है, सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उसमें, वो रट गई आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगैन वेरी सिंपल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक मेटल आके दूसरे को हटाता था, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, आई वॉन्ट यू गाइज टू से, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, आपको क्या लग रहा है डेफिनेशन ऑफ double displacement? So I hope you have made an attempt. Now let's see. It is a type of reaction in which mutual exchange of ions occurs between the reactants. आपने दो reactants लिए हैं, उसके बीच में mutual exchange of ions will occur. और इसको मैंने एक बार 3rd 4th क्लास में सिंपल ऐसे भी समझाया था, रिमेंबर, AB प्लस CD क्या देगा, AD प्लस CB, इस टाइप से म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बीच में अमंग्स द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स के बीच में आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, सो डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस अमंग्स द रिएक्टेंट्स और बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड योर DD, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए इसके लिए भी सिंपल सी एक्टिविटी है, तो क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसमें ऐड लिटिल बिट 1 ml ऑफ Na2SO4, व्हाट इज Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ओके, नाउ इन दिस ओनली यू हैव टू ऐड अनदर थिंग, व्हाट इज इट, रीड फॉर योरसेल्फ, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम सल्फेट में क्या ऐड करना है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। क्या होता है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, a white colored substance is formed which is insoluble in water and precipitates down at the bottom of the test tube, which is called a PPT, short form है PPT या precipitate. Okay, so here we have the reaction, आपने एक क्या लिया था, 1 ml of Na2SO4 that is sodium sulfate, BaCl2 लिया था, और इसमें आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड विल गिव बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिंपल। और जो वाइट PPT है, NaCl तो तुम्हें पता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर,
but barium sulfate, it is insoluble in water, so it will precipitate downwards because of gravity और नीचे white colored का PPT बना लेगा. So BaSO4 is having a white colored PPT. ठीक है, PPTs आपके कुछ कुछ हैं 10th में, उन सब का कलर पता होना चाहिए. सो ये हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट PPT आज पढ़ा, BaSO4 वाइट कलर्ड की PPT. अच्छा, अगर कोई कहे इस रिएक्शन का कोई और नाम बोलो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही और PPT बन रहा है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ओके, या नाउ अ फ्यू अदर एग्जांपल्स. लेड नाइट्रेट plus Ki, that is potassium iodide, lead nitrate. okay, sorry, lead nitrate, Pb होता है lead और NO3 मतलब nitrate, so lead nitrate. Ki मतलब potassium iodide. ये सब आपकी 9th की चीज़ें हैं. so I am assuming by now you are little familiar with the radicals. so lead nitrate plus Ki will form lead iodide. What is lead iodide? PbI2. Pb की होती है 2, वैसे तो ठीक है 2 वैलेंसीज होती हैं +2 and +4, 2 and 4, +2 and +4 is oxidation state, पर मेनली 99% लेड की अपन Pb+2 ही पढ़ते हैं. सो डोंट स्ट्रेस ओवर Pb+4. 10th में तो कहीं नहीं आना Pb+4 को. ठीक है, सो लेड की 2 वैलेंसी, आयोडाइड की 1, ठीक है, I नेगेटिव, तो इट इज़ PbI2. ठीक है, और ये होती है बहुत ही बढ़िया ब्राइट येलो कलर की PPT प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट. तो एक और इम्पॉर्टेंट आपको PPT याद रखना है, दैट इज योर लेड आयोडाइड PbI2 येलो PPT. अभी BaSO4 वाइट था, PbI2 आपका येलो है. ठीक है, नेक्स्ट AgNO3. Ag मतलब सिल्वर, Ag+1 NO3 -1, so silver nitrate, AgNO3 plus KCl. what is KCl? potassium chloride. it will give AgCl, that is silver chloride, plus बचा क्या है KNO3, so KNO3. ये AgCl ये भी वाइट कलर की ही PPT होती है. तो BaSO4 भी वाइट था, सिल्वर क्लोराइड भी वाइट है. रिमेंबर सिल्वर क्लोराइड लास्ट क्लास, सनलाइट वाला, वेरी गुड. फोटो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वाइट एंड ब्लैक या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. या सो AgCl वाइट कलर का यहाँ पर PPT बनाएगा बिकॉज इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. और PbI2 लेड आयोडाइड की तो बढ़िया येलो कलर की होती ही है. ठीक है, सो दिस इज देयर. So we have done another activity from your NCERT, that is double displacement also. yeah, तो वही लिखा है, देखिए टेक 3 ml जितना भी आप लो, 1 ml 2 ml 3 ml सोडियम सल्फेट ले लिया और BaCl2 उसको मिक्स कर दिया, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इनसॉल्युबल PPT मिलेगी जो यहाँ पर होती है वाइट कलर की. लिखा नहीं है वाइट, या इट्स देयर, वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ओके, सो वाइट PPT BaSO4 और नीचे एरो आप बना सकते हो, और ऐसे सॉलिड होता है PPT. बाकी सारी चीज़ें एक्वस होंगी क्योंकि वाटर में उसको डिज़ोल्व करा है, चीज़ों का वाटर में सल्यूशन लिया है. ठीक है, सो दिस वाज देयर, राइट. फिर ये वो वाली है, ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाली हमने पढ़ ली. ये हो जाएगी PbI2 की बढ़िया येलो PPT, PbI2 की येलो PPT. ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टाइप, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसका शॉर्ट में नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन. द लास्ट, दैट इज 5th टाइप इज लेफ्ट. So this we will continue in the next class, and then we have another tiny topic, that is corrosion. ठीक है, corrosion, rancidity, and we are done with chapter 1 of chemistry, the basic chapter, where you build certain important concepts, revise certain things of your lower classes. So here we have, we'll do all the questions properly, some extra questions also for you guys. So this is all for the class for today's lecture.
and thanks a lot for listening patiently, and please do revise a little bit at least if you can. Matlab, if you can, then it will be a huge favor on us, literally, right? And if you have any doubts, any queries, you are most free to ask. Okay, so yes, as I always say, guys, stay happy, stay blessed, and stay safe.